Good evening, dear students. Welcome to my channel Biology by Ekta. So, today we are discussing the sample paper code A over there. It is a sample paper given on the HBSC site. HBSC site. There are the four sets are there A, B, C, and D. So, today we are discussing the code number A. So, start our video. There are the some general instruction over there. All the questions are compulsory. The question paper has a 5 sections and 35 questions. All the questions are compulsory. Section A. Section A जो है that is a 18 question of 1 mark each. Section B has a 7 question 2 marks each. Section C has a 5 question of the 3 marks each, and D has a 2 case study based question of the 4 marks. Section E has a 3 questions of 5 marks each. ठीक है, तो ये 5 सेक्शंस है जिसमें सेक्शन ए में 1 मार्क, सेक्शन 2 में 2 मार्क्स, सेक्शन 3 में 3 मार्क्स एंड सेक्शन डी में 4 मार्क्स की 2 केस स्टडीज़ हैं एंड सेक्शन ई में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं. तो देयर आर नो ओवरऑल चॉइसेस, ठीक है, बट देयर इज अ इंटरनल चॉइसेस आर प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स हैव टू नोट अटेम्प्ट only you have to attempt only the or questions. Between the two questions there are the, so draw the label diagrams wherever there is a necessity. So section A, so we are discussing MCQ questions, 18 questions. So starting question number A, the coconut water from the tender coconut is A, cellular endosperm, B, free nuclear endosperm, C, both cellular and the nuclear endosperm, D, free nuclear embryo. So the question, कोकोनट जो है, कोकोनट में दैट हैज़ अ टेंडर कोकोनट वाटर जो होता है वो क्या है उसका, दैट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सो राइट ऑप्शन इज बी. सेकेंड क्वेश्चन, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन द सिट्रस अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड एग. नंबर बी, सिनर्जिड्स. नंबर सी, न्यूसेलस. नंबर डी, एंटीपोडल सेल्स. तो ऑब्वियसली द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूसेलस. Question number third, a pregnant woman is having prolonged labor pains and the childbirth has fastened. It is advisable to administer a hormone that can, number A, increase the metabolic rate. Number B, release the glucose in the blood. Number C, stimulates the ovary. And number D, activate the smooth muscles. देखिए, एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको लेबर पेन्स है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ जो है दैट इज़ अ फास्टन होता जा रहा है, तो उसको हार्मोन एडमिनिस्टर किया गया है. वो क्या करेगा हार्मोन, तो देखिए इंक्रीज़ करेगा क्या मेटाबॉलिक रेट को, ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, या स्टिमुलेट करेगा ओवरी को, या एक्टिवेट स्मूथ मसल. देखिए जो हार्मोन दिया जाता है वो क्या कर देता है, दैट एक्टिवेट द स्मूथ मसल्स ताकि चाइल्ड बर्थ ईजिली हो पाए. Question number 4, a procedure that find use of testing for genetic disorder, but it is also misused for female feticide. ठीक है, तो obviously the answer is amniocentesis, but there is a options. Number 1, A is a lactational amenorrhea. Number B is a amniocentesis. Number C is a artificial insemination. Number D is a parturition. So the right option is amniocentesis. B is the right option. Next is, the next fifth question is, in the human beings where genotype AA, BB, CC, these are in the capitals, represent the dark skin color, and small a, small b, small c, that represent the light skin color, and AA, BB, CC यानी एक कैपिटल है A, small, then BB and CC that represent the intermediate, that is a mulatto color. The pattern of the genetic inheritance, it can be termed as, number option A is leuotropy and codominance. Number B, leuotropy and incomplete dominance. Number C, polygenic and the qualitative inheritance. Number D, polygenic and quantitative inheritance. तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. ठीक है, दैट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी आल्सो, that is a polygenic and the quantitative inheritance.
Number 6 question is chromosomal theory of inheritance was proposed by, that is Sutton and Bory. Options are Watson and Crick, number B Sutton and Bory, number C Batson and Punnett, number D is a T.H. Morgan. So the right option is Sutton and Bory. B is the right answer. Question number 7 is all of the following are the part of the operon except इनमें से कौन सा operon का part नहीं है? Structural genes, enhancer, ऑपरेटर, प्रमोटर. देखिए सब कुछ है, स्ट्रक्चरल जीन भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, प्रमोटर भी होता है, बट एनहांसर नहीं होता है इसमें. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 8, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज नंबर ए ऑपेरोन, नंबर बी रेकॉन, नंबर सी म्यूटन, नंबर डी सिस्ट्रॉन. देखिए स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट कौन होगा? दैट इज द सिस्ट्रॉन. ठीक है, Cistron is a right answer. Question number 9 is evolution of the life shows that life form had a trend to moving from land to water, dry land to wet water, fresh water to sea water, water to land. Evolution of life यानी कि लाइफ का जो evolution of life है जो उसका ट्रेंड क्या है? मूविंग फ्रॉम, कहाँ से कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? वाटर पे. उसके बाद ही क्या हुआ है? लैंड पे आई है अस्तित्व, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज अ इवोल्यूशन. सो द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, paleontological evidences for the evolution refers to development of the embryo, homologous organs, fossils, analogous organs. 10th क्वेश्चंस देखिए paleontological जो evidences है वो किस पे बेस्ड होते हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉसिल्स. ठीक है. Number 11th question, which of the following would appear as pioneer organism on the bare rock? Number A green algae, number B lichens, number C liverworts, number D mosses. देखिए पाइनियर ऑर्गेनिज्म बेयर रॉक पे क्या होगा? देखो बेयर रॉक पे तो जो है लाइकन ही सबसे पहले पाइनियर ऑर्गेनिज्म मिला था, तो राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? Biosphere reserve, wildlife sanctuary, botanical garden या scared grove. इनमें से कौन सा in situ नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? दैट इज अ botanical garden, it is a ex situ conservation. ऑलराइट, दैट इज अ botanical garden. ये सभी के सभी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, स्केयर्ड ग्रूव हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन है. बट बॉटनिकल गार्डन जो है वो क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन है. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन स्टेशनरी फेज, सेनिसेंट फेज, लैग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज. ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल, इट इज एट द एक्सपोनेंशियल फेज. डी इज द राइट ऑप्शन. Question number 14. Organism capable of maintaining the constant body temperature are, ठीक है, स्टीनोथर्मल, होम्योथर्मल, पॉइकिलोथर्मल या कन्फर्मर्स. बी इज अ राइट ऑप्शन, होम्योथर्मल. ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेता है? ये मेंटेन. देखिए असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन है ये. देखिए दीज क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट होती है, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है. ठीक है, ऑप्शन ए इसमें क्या होगा? अगर दोनों ही असर्शन और रीजन अगर दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो क्या है? असर्शन की क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए ठीक होगा. बी में क्या होगा? देखिए असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. ठीक है, तो वो क्या होगा? बी. सी क्या होगा? असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है? फॉल्स है. और डी क्या है? अगर दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है इसमें? फॉल्स है. देखिए यहाँ पे दोनों दिया हुआ है बट कई उसके अंदर क्या होता है कि जिसमें असर्शन क्या है? फॉल्स है, बट रीजन क्या है? ट्रू है. देखिए अब यहाँ पर असर्शन, क्वेश्चन नंबर 15, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region DNA sequences. ठीक है, रीजन क्या है? इन द रेपिटेटिव DNA sequence a small stretch of DNA is repeated many times. अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है. अब ये 15 क्वेश्चन है. देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होती है? आइडेंटिफाइंग डिफरेंट डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजंस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस. ठीक है,
और ये कह रहा है कि रेपिटेटिव, अब देखिए इसका रिलेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से है तो, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट बी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एसर्शन 16th क्वेश्चन। Genetic engineering is essentially the alternation of genetic makeup of cells by deliberate and artificial means. ठीक है, reason it involves transfer or replacement of genes to create the recombinant DNA. अब दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एसेंशियली अल्टरनेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ द सेल्स बाय डिलिबरेटिंग एंड द आर्टिफिशियल मीन्स, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब ये रीज़न कह रहा है, अब रीज़न में देखिए इट यूज़ कर दिया, यानी कि इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रांसफर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द जीन्स, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी दोनों ही ठीक है और ये क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17th, BOD indicates the extent of water pollution by organic waste. ठीक है, रीजन इंक्रीज इन BOD decreases dissolved oxygen of waste water. ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट ठीक, BOD में क्या है, एक्सटेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन बताता है, अब इंक्रीज इन BOD डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वेस्ट वाटर, ये भी ठीक है, बट ये इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक नहीं है। ठीक है, इसका तो रिलेशन नहीं है इससे, तो बी इज द राइट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन देखिए, राउंड वॉर्म इज अ एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है राउंड वॉर्म इज अ एंडो पैरासाइट ऑफ द, ठीक है, एस्कैरिसिस बोल देते हैं हम। ठीक है, improperly cooked food is a source of intestinal infection, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए, अब ये कह रहा है इम्प्रॉपर, ये तो बिल्कुल ही अलग स्टेटमेंट हो गई, ठीक तो ये भी है, ठीक है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ तक हमने सेक्शन ए के 18 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। चलिए अब निकालते हैं हम सेक्शन बी। What is the या differentiate between benign tumor and malignant tumor? 4 डिफरेंसेस हमने टैबुलेटेड फॉर्म में बनानी है। ठीक है, टैबुलेटेड फॉर्म समझते होंगे आप, इसमें हमें डिफरेंसेस कुछ इस तरह से देने होंगे, यहाँ बिनाइन लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर मेलिग्नेंट ट्यूमर लिखिए, और यहाँ पर आप करेक्ट इसके 4 जो है डिफरेंसेस लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको डिस्कस करना है, तो करते हैं इसको डिस्कस। तो देखिए बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो फर्स्ट इज इट रिमेन्स कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, मैलिग्नेंट में क्या होगा, इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग्स टिश्यू, यानी कि आसपास क्या होता है, फैल जाता है। दे आर नॉन कैंसरस, ये क्या होती है, कैंसरस होती है। सेल्स ऑफ दीज ट्यूमर्स आर नॉट मेटास्टैटिक, बट ये क्या होती है, मेटास्टैटिक होती है कंडीशन। ये हार्मलेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके ऑप्शंस, सॉरी दीज आर द 4 डिफरेंसेस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में और में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें भी 4 डिफरेंसेस हमें टैबुलेटेड फॉर्म में बनाने हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के। चलिए तो इसको भी डिस्कस करते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस, फर्स्ट है ऑप्शन, इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एलिमेंट इज नॉट देयर। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में इमीडिएट आराम नहीं मिलता, पैसिव इम्यूनिटी में क्या मिलेगा, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द एलिमेंट। सेकेंड इज एक्टिव रोल ऑफ द सफरर इन द प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक बात। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमें बीमारी से पहले दी जाती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वैक्सीन्स कह सकते हो आप। पैसिव इम्यूनिटी जो है, देखिए रोल ऑफ द सफरर इज नॉट एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव नहीं होती। अब देखिए जैसे ही हम बीमार पड़े, बीमार पड़ने के बाद हमें कोई एलिमेंट दिया गया है, ट्रीटमेंट दिया गया, वो पैसिव में आएगा। लेकिन बीमारी से जो पहले दिया गया वो किस में आएगा, एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा, यानी वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में फॉर्म करेगा। एंटीबॉडी फॉर्म करेगा तो हो सकता है वो बीमारी हमें हो ही ना। पैसिव इम्यूनिटी जब होगी, जब हमें बीमारी है, उसके बाद हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सी थर्ड इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन द एक्सपोजर टू द एंटीजन। आप देखिए यहाँ पर जो है एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाता है। मदर मिल्क डज नॉट प्रोवाइड द
एक्टिव इम्यूनिटी। मदर मिल्क जो है वो क्या है, एक एक्टिव इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता, बट मदर मिल्क जो है दैट प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है जी, तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में हमने डिफरेंसेस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेम द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द मेडिकल साइंसेस। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम के क्या, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो एक एंजाइम है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, और ये यूज़ किया जाता है एज ए क्लोट ब्लस्टर विच रिमूव द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु हैव द मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। ठीक है, तो ब्लड वेसल से जो क्लॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यानी मेडिकल सेक्टर में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरियम दैट सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर एंड व्हाट आर दे कॉल्ड। ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है, इनके नेम बताने हमें एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो आंसर देखिए, फ्री लिविंग बैक्टीरियम तो क्या है, एजोस्पिरिलम, अजोटबैक्टर। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम कौन सा है, राइजोबियम है। राइजोबियम इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक, क्यों कहा जाता है, बोथ द बैक्टीरिया एंड द लेग्यूमिनस प्लांट्स बोथ आर गेट बेनिफिटेड, म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसके अंदर। ठीक है, और एजोस्पिरिलम और अजोटबैक्टर फ्री लिविंग है बिकॉज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी लिविंग बींग्स। ठीक है जी, तो उससे क्या है, ये रिलेटेड नहीं है, मतलब कि लिविंग के साथ ये एसोसिएटेड नहीं होता, ये फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन राइजोबियम सिम्बायोटिक होता है क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ही मिलता है और दोनों ही क्या है, वो एक दूसरे से म्यूचुअल कॉपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। 22, राइट द 4 एडवांटेजेस ऑफ जीएमओ। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट फ्लाई, व्हाट डिड मॉर्गन प्रेफर टू वर्क विद द फ्रूट फ्लाई। ठीक है, रीजंस देने हैं हमें। और एक क्वेश्चन और दिया हुआ है और में, डिफरेंस बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो 22 और 23 को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, क्या बेनिफिटेड है देखिए, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, बी रिड्यूस द रिलियंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, help to reduce the post harvest losses, and number D increase the efficiency of the mineral used by the plants। तो GMO के benefits है, GMO genetically modified organism। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि TH मॉर्गन ने कौन से ऑर्गेनिज्म पे किया था, फ्रूट फ्लाई पे, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ठीक है, क्यों किया, एक तो इसका क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल एंड फीमेल जो है इजीली क्या है, वो रिसेंबल हो जाते हैं। फीमेल का साइज़ बड़ा होता है, मेल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, इजी टू मेंटेन है ये। ठीक है, छोटी सी लेबोरेटरी में इसको इजीली हम कल्चर करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पर, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंसेस है। देखिए जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन यानी कि जीन्स को बताता है, जैसे कि प्योर टॉल पी प्लांट कैन बी रिटन एज प्योर टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ जीनोटाइप। फिनोटाइप होता है अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द लिविंग थिंग, यानी अपीयरेंस जो है जैसे कि ब्लैक कलर ऑफ द हेयर, हेयर द ब्लैक इज अ फिनोटाइप, यानी हम ब्लैक को हम क्या कह रहे हैं, फिनोटाइप कह रहे हैं। यानी अगर हम कहें फिनोटाइप, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है, ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, देखने में दोनों ही सेम है, टॉल टॉल है। जीनोटिपिकली ये क्या है, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉल जो हम कह रहे हैं फिनोटाइप है, लेकिन जब हम इसको जीन से कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी से देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसका जीनोटाइप है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डू डार्विन फिंचेस इलस्ट्रेट अडेप्टिव रेडिएशन। देखिए यहाँ पर आप, एक तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाना है, ठीक है, दूसरा डार्विन फिंचेस ने इलस्ट्रेट कैसे किया अडेप्टिव रेडिएशन को, तो डिस्कस करते हैं ये। देखिए यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया।
ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट टू द अदर्स, दैट इज डार्विन फिंचेस। एक एग्जाम्पल है इसका काफ़ी अच्छा। डार्विन फिंचेस आर ओरिजिनली सीड ईटिंग होती है, ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन देयर वेराइटी ऑफ द हैबिटेट्स देयर बीक स्ट्रक्चर जो क्या है वो इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। डार्विन फिंचेस वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर पहले। 25th क्वेश्चन, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब आपको पता ही चल गया कि यानी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑन द गिवन जोग्राफिकल एरिया दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वन पॉइंट एंड लिटरली इट इज रेडिएट टू द अदर एरियाज, ठीक है। डार्विन फिंचेस एक ग्रेट एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए है तो डार्विन फिंचेस बट इनके हैबिटेट्स क्या थे, अलग अलग थे, जिसके कारण इनका बीक का साइज क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया था, ठीक है। कुछ इंसेक्टिवोरस थी, कुछ वेजिटेरियन थी इसके कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 था पॉलीमॉर्फिज्म, यानी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, दैट इज अ मीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द डीएनए, ठीक है। डीएनए ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन द रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर ये सीक्वेंस है, ठीक है, टाटा 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 टी ए, ठीक है, किसी और के अंदर ए सी, ए डबल सी, फिर ए डबल सी, कुछ इस तरह की यहाँ पर क्या है सीक्वेंस, रेपिटेटिव डीएनए है, दोनों में ही डिफरेंसेस है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, एक तो जेनेटिक मैपिंग में, दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो ये मेन बेस ही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन सी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस देखिए, सब में यहाँ पर ऑप्शंस दिया होगा। देखिए 26 क्वेश्चन, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द फीमेल जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दिया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना स्ट्रक्चर के साथ। तो 26 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है प्लॉइडी लेवल सेल्स होती है, सिनर्जिड्स होती है, कितनी, दो होती हैं, दोनों ही क्या होती है, हैप्लॉइड नेचर की होती है। एंटीपोडल सेल कितनी होती है, तीन होती है, तीनों की तीनों ही हैप्लॉइड होती है। सेंट्रल सेल कितनी होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है। दो सेंट्रल सेल्स, जैसे कि अगर हम मैं बात करूं इस तरह से, देखिए ये तो है तीन एंटीपोडल सेल, तीनों की प्लॉइड ही हैप्लॉइड, बीच में सेंट्रल सेल होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो सिनर्जिड से एक एग सेल है। इन सब की प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। सेंट्रल सेल की भी प्लॉइडी लेवल एन ही होता है, बट इट कंसिस्ट ऑफ द टू न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एंटीपॉडल सेल, सिनर्जिड सेल, सेंट्रल सेल, सबका नेचर क्या होता है, हिप्लॉइड होता है। आफ्टर द फ्यूजन, जब फ्यूजन हो जाती है, जाइगोट फॉर्म होता है, तब इसका जो है प्लॉइडी लेवल डिफरेंट होके जाइगोट का कितना हो जाता है, 2n हो जाता है। और अगर ये फ्यूज करती है सेंट्रल सेल से, जब डबल फर्टिलाइजेशन का केस है, तो उसमें 3n, यानी कि एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ अ 3n, ठीक है। तो 3n इज़ अ एंडोस्पर्म, जाइगोट इज़ अ 2n, एंड बाकी सारी सेल्स क्या होती है, हिप्लॉइड नेचर की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के लेयर्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में से आप इसको इजीली कर सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को। एपिडर्मिस होती है, इसमें एंडोथीशियम होती है, मिडल लेयर्स होती है। अब एपिडर्मिस को क्या कहें, ये दीज आर द थ्री लेयर्स, एंड थ्री लेयर स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्शन और डिशेंस में ये हेल्प करती है। एंडोथीसियम जो होती है, दीज आर फॉर द प्रोटेक्शन और हेल्प इन, ऑल्सो हेल्प इन द डिशेंस। मिडल लेयर्स होती है, ये भी प्रोटेक्शन और डिशेंस में ही हेल्प करती है, ठीक है। अंदर जो लेयर होती है वो टैपिटम, दैट इज फॉर द न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर। तो ये सभी स्ट्रक्चर दैट इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी से इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, वुमेन विद द ब्लड ग्रुप ओ मैरिड टू ए मैन विद द ब्लड ग्रुप ए बी, शो द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी लिस्ट, द एलील्स इन्वॉल्व इन दिस इनहेरिटेंस। देखिए फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो है आई आई, यानी कि ओ, और मेल का जो है वो आई ए आई बी। तो पॉसिबल जो होगा वो क्या होगा, देखिए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप
बी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, ए एंड बी की बनती है यहाँ पर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी क्या होंगी, इसकी प्रोजेनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 27 में और में दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन द टिपिकल मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, यू कैन डिस्कस द एनसीईआरटी में से हम इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है पीसीआर, और इसके स्टेप्स हमें बताने हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें 10% लॉ को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, देयर आर द 3 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए, यहाँ तक 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब इनके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पीसीआर को हम देखते हैं सबसे पहले। 28 क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो इसका स्टेप होता है दैट इज़ अ डीनेचरेशन, हीटिंग हो जाती है, यहाँ पर हीट होता है, स्ट्रैंड्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके बाद अनीलिंग होती है, जब सेपरेट हो जाता है, हीट हो जाता है, प्राइमर्स ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्राइमर ऐड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज जो है यहाँ पर ऐड होता है, और टैग पॉलीमरेज यानी कि थर्मस एक्वेटिकस यहाँ पर ऐड होता है, एक्सटेंड हो जाता है, ये एक्सटेंशन पीरियड है ये। और इसके बाद जो है एम्प्लीफिकेशन कंप्लीट होके, पीसीआर कंप्लीट होके, ये अगर 30 साइकिल्स तक अगर रन हो जाता है तो 1 बिलियन टाइम्स यहाँ पर डीएनए हमें मिल जाता है, दैट इज़ अ पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे, एनर्जी फ्लो के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज़ एनर्जी जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड इट टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ द 10% लॉ। ठीक है, एक टॉपिक लेवल से दूसरी टॉपिक लेवल तक जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो 10% फॉर्म में हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर फूड चेन ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि अ, सबसे पहले ग्रास। ठीक है, ग्रास को ईट किया है डियर ने, और डियर को ईट किया है टाइगर ने। तो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे जाएगी, देखिए ग्रास के पास मान लीजिए 100 जूल एनर्जी थी। ठीक है, इसका 10% ट्रांसफ़र होके कहाँ गया, डियर तक। इसके पास कितनी रह गई, 10 जूल एनर्जी। यहाँ पर ये टाइगर को ट्रांसफ़र कर रहा है, 10% इसका जाता है, तो कितना, सिर्फ 1 जूल हीट क्या हो रही है, इसकी ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी। यानी कि एनर्जी जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। तो 10% फॉर्म में उसको एनर्जी क्या है, वो मिल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखिए, एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले तो आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ओवर यूज़, ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन स्पीशीज़। जैसे कि पैसेंजर पिजन को पहले यूज़ किया जाता था, तो अब ये बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि अब पैसेंजर पिजन नहीं मिलता है। हैबिटेट लॉस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारी स्पीशीज़ जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज़, एलियन स्पीशीज़ का जो इन्वेजन हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का। को एक्सटिंक्शन, अगर एक स्पीशीज़ है वो दूसरे पर डिपेंड है, अगर वो मान लो कि एक्सटिंक्ट हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली है कि वो भी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट केस स्टडी अब डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। देखिए, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन 1 to 5 में से। A woman unable to conceive after many years of the regular unprotected coitus went to specialized infertility clinic. On complete examination, woman has found to be normal while the male partner has diagnosed with the infertility. Male partner has unable to copulate the female. Couple are advised to opt for the assisted reproductive technology, ART prefer किया जाता है उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए, नेम द टेक्निक बाय विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द कपल। देखिए, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई कौन सी टेक्निक होगी, तो गिफ्ट टेक्निक इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, दैट इज़ अ गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यानी बाहर से स्पर्म लिए जाते हैं और फीमेल में वो इंजेक्ट कर दिए जाए, तो गिफ्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। What do you mean by the unprotected coitus? Unprotected coitus means there is a no use of the any uh,
जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, वास्कोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, या फिर यूज़ ऑफ द कॉन्डोम्स, या फिर लैक्टेशनल इम्यूनेरिया, कुछ भी इसके अंदर, यानी अनप्रोटेक्टेड काइटस का मीन्स है कि स्पर्म्स रिलीज इनटू द फीमेल वेजाइना। ठीक है। नेक्स्ट इज अ व्हाट इज अ यूज ऑफ आईवीएफ फॉर द कपल। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या होगा कि भाई इन विट्रो अगर फर्टिलाइजेशन वो कराते हैं तो उससे क्या होगा कि दे मे बी द फीमेल में बी प्रेग्नेंट। ठीक है। और क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेल। मेल में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, अबव केस में इनफर्टाइल है मेल, तो इसका कॉज ये सिर्फ इतना ही है कि ही इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, दैट इज़ इनफर्टाइल मेल है वो। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। ए ग्रुप ऑफ द टीनेजर्स वाज इन्वॉल्व इन द ड्रग अब्यूज। दे यूजेस द syringes and needles to inject the drugs. They indulge in this habit when they becomes adult. Administration of the drug through the needles become a piece of cake for them. Raj was most active drug abuser among guests and used to take the drug in the high profile parties. In a span of the time, he started losing the weight and suffered persistent diarrhea. He developed the constant low grade fever and used to catch the opportunistic infection. When he consulted a doctor, he got himself tested for the HIV in his blood and finally diagnosed with the AIDS. देखिए, यहाँ पे एक केस स्टडी है। टीनेजर है, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ड्रग लेते हैं, सिरिंजेस से, निडल से वो इंजेक्ट कर रहे हैं। मतलब उनके लिए एक छोटी सी बात हो गई थी। राज उसमें से एक ज़्यादा ही कुछ ड्रग अब्यूज़र था, सिरिंजेस से वो ड्रग ज़्यादा ले रहा था। कुछ दिन के बाद उसको लॉस ऑफ वेट और डायरिया वगैरह की परसिस्टेंट दिक्कत रहने लगी। ठीक है, फ़ीवर भी था उसको लो ग्रेड का। जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वो उसको पाया कि उसको क्या है, एड्स है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द राज वेट लॉस। देखिए, सबसे पहले एड्स का कारण ही क्या होता है कि वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि वो इतना ही अडाप्ट हो चुका है जिसके कारण उसके अंदर HIV यानी कि रेट्रो वायरस चला गया, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया HIV इज़ अ वायरस और बैक्टीरिया। इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ अ वायरस। राइट द कॉज ऑफ द एड्स। एड्स का कॉज क्या है, वही सिरिंजेस थी इसके अंदर, तो सिरिंजेस और नीडल्स के थ्रू वो ले रहे थे। राइट द सिम्टम। सिम्टम यहाँ पर बिल्कुल साफ दिख रहे हैं कि वेट लॉस हो जाता है, डायरिया है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो सेक्शन ई डिस्कस करते हैं। एक्सपेंड द नेम ऑफ द एंजाइम ADA। What is why is the enzyme essential in the human body such as the gene therapy for this deficiency। देखिए, ADA एक जीन होता है, एंजाइम होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज, और जीन थेरेपी यहाँ पर एसेंशियल रहती है इसको डायग्नोज करने के लिए। यानी कि एक SCID डिसीज़ होती है, SCID डिसीज़ को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी को यूज़ किया गया था। यहाँ पर NCERT में बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है BT कॉटन प्रोड्यूस मैकेनिज्म जो है इसका आप बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी BT कॉटन का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 6 में बिल्कुल ही इजीली दिखाया हुआ है। मेंसुरेशन साइकिल, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ द मेंसुरल साइकिल। ठीक है, इसमें आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो। डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, 9 मंथ का पूरा पीरियड आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें आप डिटेल में मेरी प्रीवियस जो है वीडियो देख सकते हैं। लिंक भेज दूँ, लिंक मैं इसके अंदर कॉपी कर दूँगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, 34 एंड 35, दीज ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको क्या है NCERT में मिल जाएंगे, तो वहाँ से कर सकते हैं आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें आप। थैंक यू सो मच। थैंक्स।